Good morning and welcome to the Sunday morning 11 a.m. Another event from the stable of Inspirante Institute for Culture, Art and Design in association with the Ahvan project, musical conversation, Kabir for Kids, Nimki ki khatti meethi kahaniyan with Vedi Sinha. I have with me this very beautiful, cute and intelligent Vedi Sinha. Thank you so much. Who's a passionate storyteller, a musical storyteller, and keeps Kabir as a base of her stories, keeps our Indian culture as a context, keep the philosophies of Kabir on the forefront, and teaches kids and adults alike. Kabir, the literal meaning of that is Mahan, somebody who's great. And that is the literal Hindi meaning of Kabir. It is not a religion, it is not a cult, it is not a sect. I think it's a way of life. The more people start adopting that as a way of life, they will understand to go beyond religion, to go beyond judgmental mindsets, to go beyond conditionings that we have always had since childhood. Since the time we are born, we have been told to sleep like this, sit like this, stand like this, smile like this, laugh like this, not laugh like this, speak like this, not speak like this. While all that is important in a cultural context, but there should be freedom of thought. When we talk about boundaries of our country, boundaries of our own mind, boundaries of our own culture, there are no boundaries. And that is what we are here to present today, not in this very serious way, the way I have started this, but it was important that I give you guys a context of what is it that we are going to do today. Yeah, we are going to present it in a very beautiful way, in a very beautiful discussion with Vedi, who has also created an original story with original music of hers, her own, which she's going to present today. I would like to introduce you guys Vedi Sinha. Just give me a minute. Yeah. So Vedi, having done her schooling from Sardar Patel Vidyalaya and graduation in sociology from Hindu College, University of Delhi, she went on to study at NID Ahmedabad. Her relationship with theatre and storytelling was laid early on in the childhood through workshops and performances with school as well as National School of Drama, which grew with her experience in Ibtida, the Dramatic Society of Hindu College. Directing, acting, and writing for various plays. She further began to explore her own medium for storytelling by extensively traveling and researching the folk traditions across Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Rajasthan, and started her storytelling project in 2016, the Ahvan project. The project is born out of the philosophy of love, empathy, and humanity, and holds storytelling and folk music performances and conversations across villages, towns, and cities. The second chapter of the project are workshops for adults and kids and Jashn-e-Hashiya to create a safe space and to provide tools to empathize, perceive, and channel emotion through storytelling. Welcome, Vedi. Thank you so much, Sakshi. I'm so glad I'm here with you. Thank you so much. Pleasure is all mine. So with the same philosophy of Inspirante that we would want art and culture to reach out to every household. We would want every kid to be nurtured in a cultural context of the country, because later on it's their choice what they want to adopt. However, the culture of our country is on the forefront when it comes to all kinds of personality development aspects that one looks for in their kids. भाषा चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो जरूरी नहीं है, एक्सप्रेशन जरूरी है,
हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, हम अपने आप को खड़े होकर अपनी बात कह सकें, स्पष्ट शब्दों में दुनिया तक पहुंचा सकें, ये बहुत जरूरी है। अगर स्वामी विवेकानंद लंदन में खड़े होकर हिंदी में अपना ऐसे पढ़ सकते हैं और दुनिया में इतना रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि लैंग्वेज एग्नोस्टिक कल्चर अगर हम एक क्रिएट करें तो हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे और अपने आप को अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे। कमिंग बैक टू आवर शो टुडे, Vedi, I want you to take us through your journey, and I would want you to also explain to us the Ahvan project. Okay, so thank you so much. First of all, I'm really glad क्योंकि the work that you are doing is so important at this point, I think, wherein with the modern times, I think the idea of modern is a little different from what I'd understand it to be. और उस चक्कर में क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें तो अप्रोच कर लेते हैं, पर बहुत सारी चीजें पीछे भी छोड़ देते हैं. And like you said, while it's important that one chooses or one picks in according to their own will, even to have that choice, one needs to know what all is out there, कि क्या क्या है ऑप्शन हमारे पास कि इसमें से चूज किया जा सकता है. या बल्कि मुझे तो लगता है कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम as kids we are told that we have these many choices to take from. Sometimes we don't know all the choices, and sometimes we don't know that we can also, instead of choosing, create something of our own, find something of our own, which can be an amalgamation of other things or just a free space for yourself. Coming to Ahvan and my journey, I'll try to keep it brief. I tend to deviate a lot. We would love to know about you and the project, so please don't be brief. Tell all about it. Thank you. You're too kind. You have a lot of patience, Sakshi. I've realized this over the last few weeks. So I always wanted to tell stories, and saying always ऐसे वो बड़ी हो जाती है बात, लेकिन बचपन में भी मैं जब याद करती हूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल दोस्त नहीं है या बात नहीं करती हूँ लोगों से, करती थी, पर मेरा जो अपना स्पेस था वो किताबों के साथ होता था. और थैंकफुली हमारे मम्मी पापा पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो बहुत सारी किताबों के बीच हम लोग बड़े हुए, तो उनमें सब कुछ समझ तो नहीं आता था. जब मैंने शायद पहली बार प्रेमचंद पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ रही हूँ एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. लेकिन उससे हुआ ये कि कहानियों की तरफ जो रुझान है वो और बढ़ता ही गया, और फिर शायद थिएटर, और इवन ब्रीफली आई वेंट टू बॉम्बे टू वर्क एज एन एडी, और वो सब उसी तरफ एक आई वाज ट्राइंग, क्योंकि अब हम वही चॉइसेस ही यही है, कहानी सुनानी है तो चॉइस ही यही है कि या तो थिएटर कर लें या तो फिल्म मेकिंग में चले जाएं या फिर समथिंग लाइक दिस. बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, क्योंकि मजा तो बहुत आता है. अब ये सारी चीजों में बहुत मजा आता है, तो बॉम्बे में बहुत मजा आया, थिएटर में बहुत मजा आया, बहुत सीखा, और एनआईडी में भी बहुत अच्छा लगा. पर मैं फिर एनआईडी से भाग गई 2 साल के कोर्स में. 1 साल करके मैंने कहा अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं जा रही हूँ. एंड और ऐसा नहीं है कि अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैंने एनआईडी से जितना कुछ सीखा है एज अ लाइफ लेसन, I wouldn't have learned had I not been there. लेकिन I think somewhere along the line I realized कि मुझे इन choices में से choose करना जरूरी नहीं है. That there's more to life, that there's more possibilities. और ये practical decision की तरह नहीं आया. आहवान मेरे लिए बहुत inner calling की तरह आया. मैं बहुत believer type की लड़की थी, बच्ची थी, तो मैं बड़े लोगों की क्या बिलीव करेगा बच्चा, तो वो बिलीव करता है जो मम्मी पापा बताते हैं, जो टीचर्स बताते हैं, जो समाज बताता है. तो मैं दोस्तों की सिगरेटें तोड़ दिया करती थी, और मतलब गाली दे दी किसी ने तो ऐसे हो जाती थी कि हाय राम क्या हो गया ये. और पर एक पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया कि हाँ ठीक है, तो तुम मत दो, तो तुम मत पियो सिगरेट, लेकिन थोड़ा एक बार सांस लेके सोचो तो क्यों, क्या
what is going on. तो जो बिलीवर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इवन अपने आप की एग्जिस्टेंस, एक बच्ची की एग्जिस्टेंस, एक औरत की एग्जिस्टेंस, एक काम करने वाले इंडिपेंडेंट इंसान की एग्जिस्टेंस को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारे ढांचे थे. एंड समवेयर अलोंग द लाइन विथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एनआईडी से निकलते निकलते वो ढांचे मेरे लिए बिल्कुल ध्वस्त हो गए, टूट गए. एंड what happens when the beliefs shatter? You're in a vacuum, you don't know where to head, what to do, where to go. And that's when I found Kabir. So for me it was almost like a unlearning, breaking of all learnings, and then learning the entire belief, if I may. Or I think that's when, and it never started as a project, it started as a journey for myself. And just along the line, at some point, I realized that there are so many stories that need to be shared. All of us have stories, all of us have different contexts. और वो सब शायद हम it's not like somebody is a bad person or a good person. Sometimes we simply don't know the other person's point of view. We simply don't know the other person's story. And that makes it hard for us to connect with it, to relate with it. तो यहीं से फिर उस thought से आह्वान की शुरुआत हुई. The hope is to start conversations everywhere, wherever we possibly can. तो बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही सही तरीका है या यही गलत तरीका है. We are also figuring it out only. But I think it's a matter of being open to learning every day, every minute. And I'm hoping to do that. मतलब I genuinely, humbly hope with all my heart that I can keep learning and unlearning. And that's all that Ahvan also is. Everything we do, everything we sing, all the stories we tell, it all comes from the same space of starting a conversation around love, starting a conversation around the spirituality that's not mystified, जो एक pedestal पे नहीं है. That's in every day. That's simply love. Simply कबीर के शब्द में कहें तो अनहद, वो जो अनहद का स्पेस है उसको एक्सेस करना पॉसिबिलिटी है. बस इतनी ही बात शुरू हो जाए, उतना भी काफी है. क्या बात है, बहुत खूबसूरत. Very important thing you touched upon is learning and unlearning. I feel unlearning is most important and very difficult to achieve as a concept. We all feel that we know a lot. Some of us are open to learning also, but there are very few who are willing to unlearn and learn. Because I think that is the best learning. Because if you have learned 10 things and 4 things out of that is something that you want to improvise upon, then you really need to go back to being a child. And I always believe in that if you want to learn something, you need to be a child for that. When you become a child, you need to come to a zero state, which means there is nothing there. To be on the zero state, you have to probably unlearn those 4 things that you have learned and come down to the zero state and then rise up. So वो कहानी याद आती है मुझे चींटी की, वो जो दीवार पे चढ़ गई थी और एक राजा एक गुफा में बैठा था और वो फिर नीचे आती थी और वो फिर ऊपर जाती थी और वो फिर नीचे आती थी और वो फिर ऊपर जाती थी, until she finally reached her destination and the king got his learning from that कि उतरना चढ़ना जीवन का एक नियम है. जो गिरेगा वही ऊपर उठेगा, जो ऊपर है वो कैसे और ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर आके. So you take 2 steps backwards and 4 steps forward and like that. You go on in life. Yeah, this is so perfect. Great. So today we are talking about Nimki ki khatti meethi kahaniyan. I would want you to please familiarize me with and the audience with that concept. What is Nimki and who is Nimki and what is her khatti meethi kahaniyan? So I'll start with why and then go on to what also. तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, बच्चे बहुत perceptive होते हैं. They understand things. If they might not know exact issues or they might not understand completely the intricacies of an issue, but they understand emotion more than in fact adults. Because जैसा आप शुरू में कह रहे थे कि
अडल्ट होते होते हम बचपन से इतने लेयर्स में फंस चुके होते हैं कि then it's so much harder to open up. But for when we're kids, it's so much easier to open your arms to the possibilities, to actually give in to the possibilities. जब मैं काफी छोटी थी, हालांकि अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे हर कहानी में उतना रस नहीं आता, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पंचतंत्र में बहुत मजा आता था. मैं तो आज भी हाँ, पढ़ती तो मैं भी हूँ. बिल्कुल. हाँ. लेकिन मजा बहुत आता था, और उसकी शायद ये वजह थी कि बातों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके बड़ी आसानी से परिंदों और गिलहरियों और खरगोशों की तरफ को इस्तेमाल करके आपको बात कह दी जाती है. एंड there is that beautiful visual that goes along with it. I was very fascinated. I'm sorry. I was very fascinated by that visual. You know, पंचतंत्र की कहानियों में जो वो cartoons बने होते थे ना, they used to fascinate me, and I used to enter that world literally in my dreams and in my imagination, and I would, imagine myself to be seeing that live in front of my eyes. And you know what? That feeling till date hasn't gone. I still have this Mota Panchatantra ki kahaniyan, and whenever I want to de-stress, I pick it up and I just read it through. Beautiful. So much fun. I absolutely agree. हाँ. एकदम. तो शायद वही जो आप विजुअल की बात करें, शायद उसी विजुअल के रस की वजह से आई थिंक, तो जहां मुझे मौका मिलता है मैं तो भेड़ बकरियां और बंदर ले आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है. पर्सनली आई लव इट. So generally also the protagonist is usually somebody traveling, and usually it's either a little girl or a little boy or a tiny animal. Lekin especially when I'm talking to children or the children within us, I feel like putting it simply and with that flavor of the visual is something that I really want to do. तो ये मेरा attempt है, मैं ये नहीं कह सकती, ये तो आप लोग बताएंगे कि if it worked, but this is an attempt to find that flavor also and find a little bit of message. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि कबीर ने जो कहा है वो बच्चों को समझ नहीं आएगा, ऐसा है कि बड़े लोग ना हर चीज को बहुत फैंसी बना देते हैं, एकदम लिटरेचर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मेटाफोरिकल और ये वो. तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मेरे नन्हे साथियों को मैं जो बात है वो साफ साफ कह सकूं इस कहानी के जरिए. और निमकी जो है वो एक गौरैया है, छोटी सी. अरे वाह. और निमकी दिखने को भी नहीं मिलती है गौरैया. हाँ, इसीलिए शायद गौरैया आ गई. हाँ. तो ये ही गौरैया है, और इसकी छोटी सी जर्नी है, इसकी बचपन से लेके और थोड़ी से बड़े होने तक, टू अ पॉइंट वेयर शी डज रियलाइज कि जो वो बचपन से कर रही थी, जिसपे उसे डांट पड़ जाती थी अक्सर, वो इतना गलत भी नहीं था. तो that's roughly broadly what today's story will be about. How beautiful. So I cannot wait to hear your story, Vedi, today, because we will continue our discussion after this. I would now urge you to please go ahead and present Nimki ki khatti meethi kahaniyan. I'm so glad. Thank you so much. And yeah, I'll just begin. Just give me 1 minute. I'm trying to do something. Yeah. निमकी एक नन्ही सी गौरैया जो एक विशाल जंगल के बीचों बीच स्थित तालाब के पास नन्हे परिंदों, खरगोशों और गिलहरियों के एक छोटे से गांव में अपनी अम्मा के साथ रहा करती थी. निमकी एक नंबर की कुदक्कड़ थी. दिन भर एक डाल से दूसरी डाल पे खुदकती रहती, कभी बया के घोंसले में झांकती, कभी भोलू गिलहरी का दरवाजा खटखटाती. और भोलू था बगल के दरख्त में रहने वाली गिलहरियों के परिवार का सबसे नन्हा सदस्य और निमकी का सबसे पक्का मित्र. वो दोनों सुबह जो घर से निकलते
मटर गश्ती में कब सांझ ढल जाती पता ही नहीं चलता। कभी तालाब पर बैठे घंटों कछुए से बतियाते, तो कभी खरगोश के साथ रेस लगाते, और हारने का दोष कभी रस्ते कभी चोट तो कभी एक दूसरे पे लगा देते। भोलू और निमकी ना स्कूल भी साथ ही जाया करते थे, पर स्कूल में भोलू निमकी के साथ नहीं बैठा करता था। तुम सोचते होगे ऐसा क्यों भला? तो ऐसा यूं कि पिछली कक्षा तक दोनों साथ ही बैठा करते थे, पर निमकी का मन पढ़ाई में इतना लगता था कि वो हर वक्त या तो टीचर से या साथियों से या किसी न किसी को पकड़ के सवाल पूछती रहती थी। और इस सब में भोलू का ध्यान पढ़ाई की जगह निमकी के हजारों उटपटांग सवालों पे रहता, और इम्तिहान में पाठ की जगह वही सवाल मन में घूमा करते। मैडम ने तो कह दिया था कि दोनों को अलग अलग क्लास में कर दो, पर दोनों की अम्माएं उनकी दोस्ती समझती थी, तो इस वादे पे मान गई कि स्कूल में या पढ़ाई के समय वो दोनों अलग अलग बैठा करेंगे। और तब से दोनों स्कूल तक मस्करी करते आते और गेट पे अलग अलग हो जाते। हाँ, इसमें क्लास में चिट पास करने या पेड़ों की नई भाषा इजाद करने जैसा मजा तो नहीं था, पर कम से कम निमकी के सवालों के बावजूद वो दिन का अधिकतर समय साथ तो गुजार पाते थे। अब तुम सोचते होगे कि सवालों की इतनी बड़ी सजा क्यों? तो वो यूं कि निमकी को नई बातें सीखने का, समझने का, दुनिया की हर नई चीज देखने का बहुत शौक था। इतना कि जब वो कुछ नया देखती, सुनती या सोचती, वो सामने जो भी हो उसी से पूछ लेती। पर एक सवाल कभी अकेला नहीं आता था, एक ख्याल के साथ आते थे कई सवाल, और एक जवाब पे कुलबुलाते थे अनगिनत ख्याल। कभी कभी छुट्टी के दिन निमकी सुबह से ही शुरू हो जाती। अम्मा उसके बाल बनाती, निमकी सवाल पूछती। अम्मा घर समेटती, निमकी फिर भी सवाल पूछती। अम्मा खाना चढ़ाती, निमकी और सवाल पूछती। और तो और जब अम्मा उसे खिलाती तो मुंह में कौर भरे भरे भी निमकी सवाल ही पूछ रही होती। और जब अम्मा उठ के गुसल खाने में चली जाती तो आधे आधे घंटे तक दरवाजे के बाहर खड़ी सवाल करती, फिर खुद ही जवाब बना के दे देती, और फिर उस पर फिर से सवाल करती। इसी चक्कर में निमकी अक्सर क्लास से बाहर निकाल दी जाती थी। पढ़ाई में वो ठीक थी, पर लगातार चलते उसके सवालों के प्रहार को शिक्षक भी तो झेल नहीं पाते थे, या पाठ अनगिनत सवालों में आगे ही नहीं बढ़ पाता था। पर निमकी को इस बात का भी कोई गम नहीं था। वो बाहर खड़ी कभी माली भैया से, कभी चौकीदार भैया से बतियाने लगती। एक दिन तो इतनी शिकायतें सुन ली कि गलती से प्रिंसिपल मैम ने उसे अपने कमरे में बुला लिया, पर 5 मिनट वो उसे डांटती, इससे पहले ही निमकी के सवाल शुरू हो गए। उन्होंने सोचा बच्ची का मन रखने के लिए कुछ जवाब दे देती हूँ, पर 20-30 मिनट बाद जब वो खुद ही से बतियाती रही तो प्रिंसिपल मैडम ने झक मार के उसे क्लास वापस भेज दिया और अम्मा को अलग से आने को कहा। अगले दिन सुबह निमकी को उसकी सबसे अच्छी कमीज पहनाई और खुद भी बड़े ठीक से तैयार हुई। स्कूल पहुंची तो प्रिंसिपल ने निमकी को खेलने भेज दिया, और अम्मा और प्रिंसिपल मैम कई घंटे बातचीत करते रहे। फिर अम्मा निकली और निमकी को बुलाकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक आध बार निमकी ने सवाल किए और सवालों के जवाब भी गड़े, पर अम्मा का उदास चेहरा देख के वो चुप हो गई। रास्ते भर अम्मा का जी बहलाने की कोशिश करती रही, पर अम्मा कुछ नहीं बोली। घर पहुंचते पहुंचते निमकी रो पड़ी, सिसक सिसक के अम्मा से अपनी गलती पूछने लगी। निमकी का ऐसा चेहरा देख के अम्मा भी रुआसी हो गई। बोली, मैं समझती हूँ कि तू सब कुछ जानना चाहती है, पर क्या मेरे लिए कुछ कम नहीं बोल सकती? क्योंकि दूसरे नहीं समझते निम्मी, स्कूल से चौराहे तक सभी तो हंसते हैं। निमकी बलबला के बोली, पक्का अम्मा, कल से स्कूल में एक भी बात नहीं बोलूंगी। अम्मा और उदास हो गई। ठंडी सी सांस भरी, फिर लाड़ से निमकी को देखा और बोली, अच्छा छोड़, वैसे भी जो शिक्षक छात्रों के सवालों के जवाब न दे सके, हमें उनसे क्या?
ऐसा करते हैं, कुछ दिन घर पे पढ़ाई करते हैं और फिर किसी अच्छे स्कूल चलेंगे। निमकी अम्मा की बात पर मान तो गई, पर वो समझ गई थी कि अब वो स्कूल उसे चाहता नहीं है। वो अम्मा की बात मानना चाहती थी, लेकिन आसपास सभी उससे परेशान हैं ये सोच के उसे और दुख होता। मन ही मन भोलू के बारे में सोचने लगी। कल जब से वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से लौटी थी, उन दोनों की तो बात ही नहीं हुई थी। ना चाहते हुए भी वो सोचने पे मजबूर थी कि क्या पूरी दुनिया के साथ साथ उसका पक्का साथी भोलू, वो भी नाराज होगा उससे? क्या उसके सवाल बाकी दुनिया के साथ साथ अम्मा और भोलू को भी उतने ही खराब लगते होंगे? हमको न भावे नहीं हरवा, हमको न भावे, हमको न भावे हरवा हरवा। साईं की नगारी परमायती सुगंधात, जहाँ कोई आए न जाए। चंद्र सूरज जहाँ पवन न पानी, कौन संदेश पहुँचावे। आगे चलो पंथा नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे। यही ससुरे जाऊं मोरी सजानी, तेरे हाथ जोर जरावे। नहीं हरवा हमको न भावे, नहीं हरवा हमको न भावे, हमको न भावे हरवा हरवा। कई दिन निमकी काफी मायूस रही। अम्मा कभी उसके पसंद का खाना बनाती, तो कभी नए नए खेलों के साथ उसे पढ़ाती, पर निमकी का मूड ज्यों का त्यों रहता। बहुत सोचने के बाद अम्मा ने अपनी अम्मा यानी कि निमकी की नानी को चिट्ठी लिखी। यहाँ अम्मा चिट्ठी के जवाब का इंतजार कर रही थी, वहां नानी बस्ता लटकाए निमकी के बारे में सुनकर सरपट दौड़ी आई। निमकी को नानी बहुत पसंद थी। वो दुनिया में एकलौती ही थी जो दिन भर निमकी के सवालों के जवाब देती और फिर बिना थके रात में उसके सिरहाने बैठ उसे अपने किस्से कहानियां सुनाया करती। निमकी के लिए बड़े अचरज की बात थी कि कभी कभी तो नानी की कहानियां सवाल उसके मुंह से निकलने से पहले उन सवालों के जवाब दे देती।
तो सुबह सुबह निमकी जब मुंह फुलाए उठी और नानी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लपक कर कस के नानी को पकड़ लिया। नानी, तुम आजकल में तो नहीं जाने वाली ना? नानी की गोद से मुंह उठा के उसने पूछा। नहीं बाबा, ये भारी सा बस्ता नहीं देखती, मैं तो यहाँ कुछ दिन रहने आई हूँ, वहां बोर हो जाती हूँ ना अकेले अकेले। निमकी का चेहरा पूरा दिन गम गम करता रहा। अम्मा के पीछे पाठ याद करती थी, पर पूरी चेतना नानी के भारी बस्ते, कहानियों और जवाबों में लगी थी। रोज भी साथियों के बिना पाठ में मन तो नहीं लगता, पर आज तो जैसे समय आगे ही नहीं बढ़ रहा था। बार बार दीवार पे टंगी घड़ी देखती, पर ऐसा लगता कि घड़ी का कांटा आज चलने की जगह घसीट रहा हो धीरे धीरे। निमकी के भटके ध्यान और खाने की तैयारी का सोच अम्मा ने पाठ को जल्दी खत्म कर दिया और छुट्टी मिलते ही निमकी नानी का हाथ पकड़कर अपनी सारी पसंदीदा जगहें दिखाने ले गई। जो सैर करके दोनों थकी बांधी लौटी तो अम्मा ने खाना तैयार रखा था। तीनों ने मिलकर खूब गप्पे लगाई और तरके खाया। फिर निमकी लेट गई और नानी सिरहाने बैठी उसके सर में तेल लगाने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करती रही। फिर निमकी ने अपना पूरा दुख नानी को कह सुनाया। स्कूल से निकाल दिया जाना, भोलू का बात न करना, और अम्मा वो भी तो कितनी दुखी थी। शायद मेरे ही सवाल गलत है नानी, तभी तो परेशान हो जाते हैं सब उनसे। अम्मा भी, वो कहती तो नहीं, पर परेशान तो मेरे ही कारण रहती है ना। नानी ने सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर निमकी को देखा, फिर बोली, निमकी, सवाल कभी गलत नहीं होते। हाँ, हो सकता है उन्हें पूछने का समय गलत हो कभी कभार। और रही बात तेरी अम्मा की, तो उसकी बस एक ही चिंता है कि तू खुश रहे। निमकी इस बात पे नानी से शिकायत करने लगी, पर जब मैं उनसे सवाल करती हूँ, कभी खाना बनाने लगती हैं, तो कभी गुस्सल खाने चली जाती हैं, और कभी कभी तो जवाब भी नहीं देती मेरा। नानी फिर टोक के बोली, इतने सवालों और जवाबों के बीच अपने साथ साथ अपने आसपास वालों के लिए भी तो सोचना जरूरी है ना। निमकी को समझ नहीं आया। मतलब? ये बता कि अम्मा किसके लिए खाना बनाती है? हड़बड़ी में गुस्सल खाने जाती हैं ताकि तेरा पाठ शुरू हो सके। दिन रात तुम दोनों को खुश संपन्न रखने में लगी रहती है। ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कभी खुद से सवाल करना चाहती हो, पर तेरे सवालों की झड़ी ही खत्म नहीं होती। निमकी अचानक गंभीर हो गई। औरों को परेशान करके परेशानी अपनी भूल सकती थी, पर अम्मा को? तभी तो नानी, शायद सवाल ही गलत है। नानी ने फिर टोका, न सवाल कभी गलत होते हैं, न सवाल पूछना। हाँ, कभी कभी सवालों का जवाब धीरे आता है और उसका इंतजार करना पड़ता है। निमकी ठीक ठीक ये बात समझी तो नहीं, पर उसे इतना समझ आ गया कि अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उसे धीरज यानी पेशेंस की जरूरत है। नानी की कही ये बातें अक्सर उसके मन में रह जाती, और जब जब उसे लगता कि वो टूट रही है, वो फिर से इन बातों पे गौर फरमाती। नर काहे सकुचाए मन इतले धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो तुम धीर धरो मन धीर धरो। सकुचाए मन इतले धीर धरो तुम धीर धरो
धीर धरो, मन धीर धरो। इतना रास्ता देख लिया जब खुद से चलना सीख लिया, मन धीर धरो तुम धीर धरो। घर का है सब कुछ आए मन निकले, धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो। ये काहे की रस्सा खींची है, काहे की मुठभेड़, अपना रास्ता आप बनाए, हार जीत का फेर, फिर क्यों हार जीत का फेर। मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो। मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो। मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो तुम धीर धरो, मन धीर धरो। कुछ दिन तक निमकी का रोज यही रूटीन रहा। सुबह का नाश्ता कर निमकी पढ़ती, फिर पढ़ाई खत्म करके अम्मा और नानी के साथ बाहर निकल जाती, घूमती फिरती, देखा करती कि कहाँ कहाँ बैठ सकती है, और फिर नानी को जबरदस्ती ही वहां बिठा लेती। नानी समझाती कि उनकी बूढ़ी कमर लचक सकती है, पर निमकी नहीं मानती थी। फिर थकी मांदी रात का खाना खाकर नानी की गोद में सर रखकर लेट जाती, और नानी नहीं थकती थी। नानी सुनाती और कहानियां, अपने जिए सवालों और जवाबों की। एक दिन लेटे लेटे निमकी फिर बोली, तो फिर सब सवालों से भागते क्यों हैं? नानी को भी बात समझने में 1 मिनट लगा। उन्होंने पूछा, मतलब? निमकी ने और जोर शोर से कहा, मतलब अगर सवाल गलत नहीं होते और बस उनको ढूंढना होता है, तो सब लोग सवालों से डरते क्यों हैं? नानी कुछ देर मुस्कुराई और बोली, क्योंकि सवाल बुरे नहीं होते, पर बदमाश जरूर होते। एक सवाल कई 100 जवाबों को जन्म देता है, और वो कई 100 जवाब हजारों और सवालों को। और जब तक जवाब ना ढूंढ लो ना, ये सवाल पीछा नहीं छोड़ते। इसीलिए लोग इन बदमाश सवालों से नहीं, जवाब ढूंढने से डरते हैं। डरते हैं कभी कभी हर नई बात, हर नई चीज, हर नए इंसान से जो हमसे अलग हो, और आने वाली नस्ल को विरासत में दे देते हैं अपने डर और अपनी शंकाएं। पर सवालों को जिंदा रखना उतना ही जरूरी है जितना खुद को खोजते रहना। खुद को खोजना। निमकी इस बात पे भटक गई। निमकी को ये बात बड़ी मजेदार लगी। बोली, हम खुद को क्यों नहीं, कैसे ढूंढेंगे जब हम यही हैं? नानी मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। बहुत सोचने के बाद वो बोली, मुझे पसंद है जलेबी और चॉकलेट, फूल, हाँ मिट्टी के टीले, और नापसंद जंगल के उस पार रहने वाले राक्षस और दूसरों को बुद्धू बनाने वाले बुरे लोग, और हाँ बस इतना ही। वो और बुरी चीजें गिनवाना चाहती थी, पर मायूस रह गई कि उस समय उसके दिमाग में और कुछ आया ही नहीं। नानी ने फिर पूछा, और तुमने इन्हें देखा है क्या? किन्हें? निमकी बोली, इन्हीं राक्षसों और बुरे लोगों को जिनकी तुम बात कर रही हो। निमकी फिर सोच में पड़ गई, और नानी फिर बोली, जब हम अपने सवाल लेकर औरों के पास जाते हैं ना,
तो बहुत सा ज्ञान मिलता है, पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें समझने के लिए उन्हें जीना पड़ता है। जैसे बचपन में मैं तेरी अम्मा को और तेरी अम्मा तुझे कई कई 100 बार समझाते थे कि गरम कढ़ाई ना छुए, लेकिन जानती हो तुम दोनों ने आखिरकार कब कढ़ाई छूना बंद किया? कब? उस दिन जिस दिन कढ़ाई छू के तुम जल गए। जब हम अनुभव जिएंगे तभी तो हमारी समझ, हमारी धारणा किसी और की कही समझ कहानी नहीं, हमारी अपनी होगी, सचमुच हमारी आंखों देखी। नानी की ये बात उसे बहुत अच्छी लगी, पर वो एक और बात पूछना चाहती थी। नानी उसकी शक्ल देख के भाप गई और पूछा, हाँ भाई बोल। बस यही कि सवालों के जवाब मिलते कहाँ हैं? नानी मुस्कुराई और बोली, हर उस जगह जहां हम आंखें और बाहें खोल सकें, हर जवाब के लिए तैयार हो, हर संभावना के लिए। जरूरत है बस खुलकर सामने देखने और खुलकर जीने की। यार पीले अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी, पीले अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी यहाँ जड़ी लगी, पीले अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी। यार पीले अमीर रस धारा गगन में जड़ी लगी। उनका प्यासा घड़ा बार पाया, सपने में वो स्वाद न आया। उनका प्यासा घड़ा बार पाया, सपने में वो स्वाद न आया। कहो किसे कैसे समझाए, कहो किसे कैसे समझाए। एक बूंद की तरण लगी, नीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी, नीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी। यार पीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी, पीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी। प्यास बिना क्या पिएगा पानी, प्यास के लिए है ये पानी। प्यास बिना क्या पिएगा पानी, प्यास के लिए है ये पानी। बिना अधिकार कोई नहीं जानी, बिना अधिकार कोई नहीं जानी। अमृत रस की तरण लगी, पीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी। यार पीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी। यार पीले अमीरस तारा गगन में जड़ी लगी। नानी की कहानियों और अम्मा के लाड़ को कई साल बीते। समय गुजरा और निमकी बड़ी हुई। अब सवाल लगभग ना के बराबर पूछती थी, मान जाती थी दूसरों के सच और अपने खोजने की जिल्लत और मशक्कत से बच जाती थी अक्सर। नानी को गुजरे अब कई बरस हो गए थे और निमकी अब शहर में रहती थी। अभी कुछ दिन पहले ही अम्मा से मिल थी। सब कुछ वैसा जैसा पहले निम्पोर्ट गई थी। आज भी सोच तक नहीं बदली। तो निमकी को आज भी उसी बातूनी लड़की की तरह जानते थे, जिसकी बातों का सर पैर अक्सर ढूंढे नहीं मिलता। निमकी सभी से मिली, पर मुलाकात में अब अपनापन कम और समाज से सीखा कथित सच का संकोच, शक, डर ज्यादा था। भोलू से भी मिली।
उसके नन्हे बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। पर भोलू भोलू ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। शायद बचपन की टूटी दोस्ती का अभी भी मलाल करता होगा, या फिर हो सकता है निमकी के आगे बढ़ जाने और खुद वहीं रह जाने का। निमकी को गांव में अम्मा के सिवा कुछ अपना नहीं लगता था। अभी लौटे 2-4 ही दिन हुए थे कि एक शाम अचानक अंधेरा आ गया। बादल गड़गड़ाने लगे और ऐसी गरज हुई कि कई 100 साल में किसी ने नहीं सुनी थी। सब थोड़े घबरा गए और शाम ही से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और घोंसलों और कोटरों में पानी भरने लगा। गांव के सभी बड़े बतिया रहे थे और निमकी को नानी की कहानियों का तूफान याद आया। पूछ पड़ी, क्या ये तूफान हो सकता है? भोलू निमकी को आज भी बच्ची मानता था और दोस्ती तोड़ने की वजह भी। वो पिनक के बोला, बस अपने मन में सोची बातों से सबको डराओ मत। निमकी अटपट आ गई। घबराहट में एक बार चिपट गई, पर हर मिनट बारिश और तेज होती जा रही थी। हवा से पेड़ खूब हिलोरे खा रहे थे और बच्चे डर के अपनी अम्माओं से चिपटे हुए थे। कुछ देर सारा तमाशा घटित होता देखती रही। फिर कुछ देर बाद निमकी को लगा कि इस चक्कर में तो सभी मारे जाएंगे। वो उठी और सबको पीछे आने को कहा। सबसे पहले निमकी सभी को और गहरे जंगल में ले गई और फिर एक बड़े से दरख्त के नीचे एक महफूज सुरंग में। कई घंटे बीते, सब सांस रोके वहीं बैठे रहे। अगली सुबह जब पानी रुका और धूप खिली तो धीरे धीरे सभी बाहर आए। जब सब अपने अपने घरों को देख वापस लौटे तो भोलू की अम्मा तारीफ करते हुए पूछी, हमारी भगोड़ी मस्तमौला निमकी ऐसी समझदार कब हो गई? क्या शहर में पढ़ के आई है? भोलू अब भी खिसियाकर कोने में बैठा था। निमकी मुस्कुराई और बोली, नहीं अम्मा, बचपन में मैं और भोलू खेलते हुए कई कोटर खोजते थे। कई साल कईयों से पूछा तो पता चला कि कौन कौन से पेड़ में कोटर होते हैं। औरों से पूछा तो ये जाना कि कौन से कोटर बरसात से बचाते हैं और कौन से सूखे से। और आज भी यूं ही बचपन के खेल की वजह से। जानती हो अम्मा, अगर भोलू और मैं बचपन में इतनी बदमाशी ना करते तो आज मुझे ये कोटर कभी नहीं मिलता। जब सब चले गए तो भोलू चुपचाप आया और बोला, ये सब कुछ तुम्हारे सवालों का नतीजा है। निमकी पूरे दिन से उसके तेवर देख के तंग आ गई थी। गुस्से में बोली, क्या? इस बार भोलू चिढ़ा नहीं। वो बोला, हम सब सही समय पे निकल पड़े। जानती हो, सब कोटर, सब घोंसले बुरी तरह टूट चुके हैं। वहीं रहते तो क्या पता हम सब बचते भी या नहीं। शायद मैं गलत था, शायद हम सब गलत थे, शायद सवाल गलत नहीं होते और तुम भी। निमकी चुप हो गई। उसे लगा नहीं था कि ये गांव उसको कभी समझ पाएगा। वो मुस्कुराई और आसमान को देखते हुए बोली, जानते हो, नानी कहती थी, सवाल बुरे नहीं, बस बदमाश होते हैं। बस उनके जवाब ढूंढने पड़ते हैं सही समय पे। भोलू और निमकी आसमान को देखकर अपना सारा बचपन, स्कूल की मार, नानी का लाड़ याद कर मुस्कुरा रहे थे। और बरसों बाद ऐसा लगता था जैसे नानी सिरहाने बैठी हो और सर में तेल लगा रही और उसे समझाती हो बस एक ही बात, कि सवालों को जिंदा रखो जब तक आवाज जिंदा है। सवालों को जिंदा रखो जब तक सांस जिंदा है। पथिक जो चलना सीख लिया है, पथिक जो चलना सीख लिया है, काये अब तू रो बोले
पाँव बढ़ाता चल तू कठिन बलापत हो, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले। राह में रोड़ी राह में बजड़ी, राह में रोड़ी राह में बजड़ी, राह में कंकड़े काटे, राह सरल हो जाएगी यदि सुख ही तू बाटे, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले, अरे चल मुसाफिर होले होले बड़े मुसाफिर होले। So, in the end, to all my young friends and old friends who are young at heart, to all of you, I hope that despite the world telling us what to ask and what not to ask and how to ask, we will keep asking our questions and finding their answers. Because essentially, if we don't keep looking, if we don't keep trying, what else do we live for? Thank you. आप म्यूट पे हो सकते। I said, मैं क्या कहूँ वेदी, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं डिस्क्राइब करने के लिए जो मैंने फील किया। कहीं ना कहीं आई थिंक ये हम सबकी कहानी है, हम सबकी, नॉट ओनली यंग एंड यंग एट हार्ट बट इवन द वंस हु आर ओल्ड, जिस तरह से हम अगर खुला मन और हम खुले विचार और हम खुले दिमाग के साथ एक बच्चे होते हैं, उस दिमाग को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाता है कह के अरे तुम बहुत बोलती हो, अरे तुम बहुत बातें करती हो, तुम बहुत सवाल पूछती हो, कितना चुप रहो। आई थिंक वो एक समय होता है कि द चाइल्ड इज एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज न्यू, you know, so he is a seeker or he or she is a seeker, and in their own seeking, you know, they end up asking these questions from us, और हम इरिटेट मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसलिए होते हैं कि हमारे पास उसके जवाब नहीं होते, बहुत चीजों के जवाब हमारे पास नहीं होते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू गेट इरिटेटेड ऑन किड्स एंड यू नो टेल देम कि चुप रहो, काम करो, चलो पढ़ाई करो, तुमने पढ़ाई की आज। True. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसमें कुछ चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा दिल को भाई, ऑफ कोर्स तुम्हारे सॉन्ग्स, दो तो इसमें कबीर जी के ही थे सॉन्ग्स और दो तुम्हारे अपने थे। चारों सॉन्ग्स का इतना इम्पोर्टेंस, इतना रेलेवेंस था स्टोरी में। मैं एक बार तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सॉन्ग्स के को अगर तुम थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए डिस्क्राइब कर सको। थोड़ा बहुत तुम्हारी संगत में रह के मैं तो थोड़ा सीख गई हूँ, बट आई वॉन्ट द ऑडियंस टू ऑल्सो रिलेट टू इट मच मोर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो अपॉलॉजीज फॉर द टेक्निकल कंफ्यूजन एट माय एंड। थोड़ा सा एक तारा जो है वो मौसम देखते हुए डिट्यून हो जाता है, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम समटाइम्स। और हाँ, बट खैर hopefully it didn't cause too much inconvenience to all of you.
एंड नाउ कमिंग टू द सॉन्ग्स, तो सबसे पहला गाना जो है वो कबीर जी का है। इसका नाम है नैहरवा। और तो नैहर, नैहर जैसा हम जानते हैं, नैहर और पीहर हमारे कल्चर में देयर आर दीज टू हाउसेस। एक हमारे माँ का या पिता मतलब लड़की के का घर है, और एक जो है वो ससुराल ससुराल है जिसकी बात होती है। तो यहाँ पे उस मेटाफर को लिया गया है, पर उस पे ज्यादा तो नहीं, अब आज तो नहीं ज्यादा बोलूंगी। पर द कॉन्सेप्ट बेसिकली इज दैट कबीर इज ऑल्सो सिंगिंग ऑफ हिज पेन। तो वो कह रहे हैं कि मैं जहां हूं, अब वो सामाजिक रूप से या मेंटल रूप से या फिजिकल रूप से, दैट कैन बी डिपेंडेंट ऑन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन मैं जहां हूं वहां मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, एंड आई वांट टू गेट टू बेटर प्लेस। और उस बेटर प्लेस की भी उन्होंने एक तरीके से ऑफ कोर्स मेटाफोरिकल, लेकिन एक चित्र बांधा है कि जहाँ पे जो है restrictions नहीं है, boundaries नहीं है, the same rules that apply in this world that I don't like anymore don't apply in that world. And then he goes on to say that when I often feel like I want to go to this place, I end up feeling stuck, and when I feel stuck, I start blaming my past, I start blaming my present, I start blaming everything that else other than myself. और वो कहते हैं, अंत करते करते वो कहते हैं इस गाने में कि ultimately if I have to sit with myself, I have to reflect and understand my experiences, my emotions, and once I'm able to be honest to myself, completely transparent to myself, that's a or that space, or that space will become this space. So it's not a matter of physical space. Automatically this place will turn into something more, a little more beautiful, because of the way we were looking at it, and now the different way that we are looking at it from the different place. And also that I will find my answers in my own self, within my own self. तो बहुत सारे ये जो मुझी में, हर काम में राम है और मेरे अंदर भी है वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिमिलर टू दैट ही सेज कि आई डोंट लाइक दिस प्लेस। एंड व्हाइल ही स्टार्ट्स एज अ फ्रेंड, जो साथी है, जो कह रहा है मैं भी फंसा हुआ हूँ दोस्त तुम्हारी तरह, मुझे भी दूसरी जगह जाना है, पर अंत आने तक वो ये भी समझा देते हैं कि देखो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर हम ये ट्राई कर सकें to be completely transparent, to be completely honest with ourselves, then it's not so hard to reach that place also. But we need to start somewhere. तो ये था पहला गाना। जो दूसरा गाना है वो ओरिजिनल है, वो है मंदिरों। और मंदिरों को तो मैं बहुत एक ही लाइन में बताना चाहूंगी, क्योंकि वो बेसिकली अपने मन से बातचीत है। वो दैट्स अ कॉन्वर्सेशन विथ माय ओन सेल्फ कि भाई ठीक है चीजें धीरे चल रही हैं, ठीक है चीजें बहुत तेज चल रही हैं, लेकिन वॉट एवर इट मे बी, सहज रहो, धीरज रखो, हैव सम पेशेंस एंड कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट। एंड दैट्स हाउ, once you know where you have to walk, once you know what to do, you don't have to necessarily be running behind something or be, very very treading carefully. बस keep walking and keep calm. तो ये शायद मेरे लिए खुद को ये कहना था, जब ये गाना लिखा गया तो ये मैं अपने आप को बता रही थी। इन माई लाइफ आई हैड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन वेयर टू गो, व्हाट टू डू, एंड एट सम पॉइंट आई रियलाइज दैट द हैसल इज दैट आई एम हैसल्ड। प्रॉब्लम ये है कि मैं परेशान हूँ। मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ कि बहुत प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे चली जाएगी अपने हिसाब से, अपने टाइम से। तो दैट्स दैट। कमिंग टू द थर्ड सॉन्ग, इसे अब मैं इन गानों को एक एक लाइन में ही कोशिश करती हूँ, एंड देन वी कैन टेक अप दीज सॉन्ग्स इन डिटेल लेटर। तो पीले अमीरस धार जो है वो बेसिकली यही कबीर का और कई सूफी संतों का ये कहना है कि ये जो दिस एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट नॉलेज, लव, अवेयरनेस। और ये जो दिस नेक्टर, दिस आंसर, दिस ब्यूटिफुल थिंग इज अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरीथिंग।
और सेम कॉन्सेप्ट गुरु का भी है ना, कि अगर आप चाहें तो आप हर चीज से सीख सकते हैं, हर चीज से कुछ पा जा सकते हैं, बट अगेन वंस वी स्टार्ट कन्वर्सिंग विद आवरसेल्फ। तो पीले अमीरस धारा भी कुछ ऐसा ही है कि while this nectar is available everywhere, we will find it when it is our question. We won't find it if we are asking that question for somebody else or because others think we should be asking that question. तो हाँ, ये हुआ पीले अमीरस धारा। और आखिरी गाना पथिक, वो तो पथिक मेरा जिंदगी का पहला गाना था, और ये भी मैंने खुद ही के लिए लिखा था, क्योंकि चलो भाई कुछ नया तो मिला है, पर आगे कैसे बढ़े, समझ तो नहीं आ रहा है। तो पथिक बस इतना कहता है कि देखो, हम सब यात्री हैं और हम सबकी एक यात्रा है जो हमें पूरी करनी है। तो चाहे हम गिरे, चाहे रास्ते में लाख मुसीबतें आए, हम गिर जाए, हमारा मुंह फूट जाए, तब भी हमें चलना तो आता ही है ना, उठना तो आता है। तो एक बार जो चलना सीख लिया है, तो गिरने के बाद भी फिर खड़े होंगे, फिर चलेंगे, हाँ, टूटेंगे नहीं। तो यही है, एक एक लाइन में कोशिश की है। आई डोंट नो इफ आई वाज सक्सेसफुल, बट या Well, success means different to different people, but the objective with which we are sitting here, definitely you have been more than successful in that. इतनी सारी चीजों पे तुमने एक साथ इतने कम और इतने सुंदर और इतने सिंपल स्टोरी के माध्यम से तुमने हमको इतनी सारी चीजें बताई ना वेदी, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं पहले किस चीज के बारे में बात करूं और फिर किस चीज के बारे में बात करूं, यू नो। पेशेंस, यू टोल्ड अस, तुम्हारा जो ये सॉन्ग है कि मन धीर धरो, धीर धरो is also telling you to be patient, to you know, in any situation, and that is what our all the spiritual masters have said, that you know, you need to keep patience. And the other way of patience is also surrendering. If you surrender, then you will definitely be patient, that you know, something good will come out of the situation also, even if you think on the outside that it's a bad situation, but somewhere, you know, it will give you that confidence and belief that you know, if you keep patience, if you continue with your surrendering, you will reach somewhere. So that is that. Two, you have taught the real meaning of a seeker, you know, somebody who's seeking, somebody who's asking questions, and not only to the questions to the world, but questions to yourself, because it's us also who need to correct ourselves, you know, and we need to introspect ourselves, and therefore we need to also ask questions with ourselves कि तू क्या कर रहा है, हे मन तू क्या कर रहा है, साक्षी तू क्या कर रही है, वेदी तू क्या कर रही है, you know. So you need to ask questions to yourself, if you need to correct yourself, and that is what I think गिरना और उठना, for me that is what it means, because हम लोग जब ग्रो कर जाते हैं, तो हमारी जो सेंस और सेंसिबिलिटीज जो है, वो कहीं हम पीछे छोड़ के हम अपनी ईगो को बहुत आगे ले आते हैं, तो कोई और अगर करेक्ट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। एंड समवेयर, यू नो, इफ वी हैव दिस self-correcting mechanism within ourselves, by asking ourselves questions that what we are doing is right or wrong, that is also one way of looking at this whole thing, I believe. Of course, for a child, as we discussed, that you know, it is seeking, and the child is seeking everything when the child is born. They're seeking everything because they don't know nothing, right? So उसको तो हर चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर तुम्हारी शर्ट पे फूल बना है तो ये फूल क्यों बना है, और ये फूल का क्या नाम है, और इसकी 4 पत्तियां क्यों हैं, उसमें 2 क्यों नहीं है, या 1 भी हो सकती है क्या? या क्या कुछ और बना सकते हैं इसकी जगह? तो उसके तो क्वेश्चंस एंडलेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ हैबिट, इफ वी चैनलाइज द क्वेश्चंस ऑफ द चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन एंड नॉट स्नैप इट, I think somewhere we will have better personalities coming out tomorrow. And आपकी जो ये निमकी की जो खट्टी मीठी कहानियां थी, मेरे लिए उसका सार यही रहेगा कि हम जो है अपनी जो ये जर्नी है, जो खोज की जर्नी है, उसको कहीं भी खत्म ना होने दें, उसको हम बरकरार रखें बचपन से. So wow, I mean, I am still in that zone, you know, in the trance.
of your story and your music. Beautiful. And I am so mesmerized by your Iktara also that मन करता है मैं कभी कभी उसको छू लूं और कभी उसको बजाने की कोशिश करूं. मेरे पास एक छोटा फॉर्म है घर पे, बहुत पहले से है, बट आई डिड नॉट नो हाउ टू रियली प्ले इट. बट तुमको देखने के बाद इंस्पायर होती हूँ मैं कि कभी बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और बहुत मजेदार. प्लीज हाँ मेरी तुम्हारा सिग्नल थोड़ा सा लूज है. आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपरली. आई थिंक थोड़ा सिग्नल का इशू था. आई कुडंट हियर यू प्रॉपरली. हाँ यस यू कैन कंटिन्यू. मैं तो बस ये कह रही थी कि जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि आई थिंक इट विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड द स्मॉल इक्तारास हैव अ वेरी peculiar sound also. It's beautiful and I'm sure you'll love it. Thank you. Sure. And also sorry. बोलिए. But I have to say thank you so much for being so patient and so kind, Sakshi, and for just giving me this space. कहानियां या गाने तो हाँ होते हैं, लेकिन to be able to talk about these things also is so important, and you gave me the space also, and you're a person who's invested in the conversation, so I'm also loving it. Since we've started talking, this has been so great. Even before the session, much before that also, I was like, person, it's a connect that I feel. That's really I'm very thankful. Really kind of you. आगे ले जाते हैं कॉन्वर्सेशन को. स्टोरीज आपने सुनाई, इस स्टोरी के जरिए से इतना खूबसूरत आपने एक माहौल क्रिएट कर दिया बच्चों के लिए. What is it that, how is it that we can make it more relevant for kids of today? Relevance को हम कैसे उनकी भाषा में, उनके तरीके से, उनके अंदाज से, मैं आपसे जानना चाहूंगी ये चीजें हम कैसे, how do we take that forward? And what are the kind of workshops that coming ahead? So I think the answer comes from what you said in our conversations previously also, in this session only. I feel like सबसे बड़ी प्रॉब्लम कबीर और बच्चों को जोड़ने में ये होती है कि हम अक्सर ये भूल कर जाते हैं कि हमें लगता है एक ये कि that kids won't understand, wherein I feel like they understand everything. Maybe words can be challenging, but वो तो होता ही है. मतलब अगर मैं हिंदी भाषी हूँ तो मेरे लिए अंग्रेजी के शब्द, या अंग्रेजी भाषी हूँ तो हिंदी के शब्द, and so on and so forth दिक्कत करेंगे. But I think the gist is not hard to understand. Also मुझे लगता है जो पहले बात हो रही थी कि spirituality को जब हम एक pedestal पे रख के देखने लगते हैं as a larger than life, as a magic, as something that's shining and is emulating some kind of bright light. The truth is spirituality, somebody said very beautifully that human beings are not people having spiritual experiences, but these are spiritual beings having human experiences. And I do agree with that, especially because because when you see kids, when you see children and how they seek and how they want, like you said, they want to learn everything, they want to know everything. And कितनी मजे की बात है कि पहले हम सिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, और फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम सिखाते हैं कि नहीं नाउ अनमास्क एंड अनलर्न एंड अनबर्डन योरसेल्फ. तो बड़ा रिडंडेंट लगता है मुझे. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये दिस इज हाउ आई लुक एट इट, कि मुझे लगता है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है शायद कबीर और बच्चों को साथ लाना, क्योंकि अगर हम कोशिश करें, अगर हम उसे वही जैसे हमारे बचपन में कैसे दोहे रटाए जाते थे और संधि, तो when you make something so technical and to the point, then anybody will lose interest, including us. तो मुझे लगता है कि बस एक तो ये बात है, और दूसरा क्योंकि कबीर बड़े कॉन्टेक्सचुअल बातें, बहुत लाइक एवरीडे रिलेटेड बातें करते हैं जिनको हम बिगर मैक्रो लेंस से भी देख सकते हैं. तो मुझे लगता है कि कहानियों की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कबीर भी इनफैक्ट गाना वैसे भी एक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है, कबीर भी कहानी ही सुना रहे थे. With his songs he was also telling a story, and I feel that that's
also a very important part of us to be able to share our stories, our contexts, and to be able to hear all these other contexts. तो in my understanding ये सब जोड़ के जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक ऐसा स्पेस बनाए जहाँ पे बच्चों को कहानी दी नहीं जाए, बच्चों से बातचीत हो और वो हमें कहानी सुनाए, वो सुनाए जो वो भले वो अपने एक बाल के बारे में बात करें. I don't mind a story about a strand of hair for an hour, but it'll be their story, and so it makes it important then. तो यही मेरी समझ है कि कोशिश करें कि एक ऐसा स्पेस बने जहां बच्चों से बातचीत हो और बच्चे अपनी कहानियां बनाएं और उन कहानियों के माध्यम से उनके कैरेक्टर्स के माध्यम से हम कबीर को अप्रोच कर सकें. बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत. यस, यू राइट कि बच्चे अपनी कहानी बताएं, बच्चों के अंदर का एक्सप्रेशन निकल के बाहर आए, उस एक्सप्रेशन में सादगी होगी, इनोसेंस होगी, intelligence hogi, because kids are far more wiser than us when it comes to observing the world, when it comes to observing nature, when it comes to observing the daily life incidents. Kabir, kids are far more intelligent. उनकी कहानियां सुनने में definitely मजा आएगा, and that is what our workshop, our next workshop is going to be. On 2nd of October, we have also chosen the Gandhi Jayanti, Mahatma Gandhi ji ka birthday, to do this workshop, which is going to be on 2nd October, 4 p.m., for which we will seek your registrations for everybody, wherein we will try and understand what is inside the kids. कहानी बनाना और कहानी लिखवाना तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है. We will come to that also. बट इन दिस वर्कशॉप हम लोग बच्चों के साथ एंगेज करके थोड़ा सा उनके तरफ का नजरिया जानना चाहेंगे, उनकी सोच, उनकी अंदर की एक्सप्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. सो दैट इज व्हाट इट इज. वेरी ब्यूटीफुल. मुझे पता नहीं बारी बारी तुमको, मुझे बारी बारी ना तुमको निमकी कहने का मन कर रहा है. आप कह सकते हो. कितना ब्यूटीफुल कैरेक्टर तुमने प्रिपेयर किया है. व्हाइल आई वाज स्ट्रगलिंग टू, जब तुम कहानी सुना रही थी ना तो मुझे लग रहा था यार निमकी तो गोरैया है ना, तो उसकी नानी कैसी होगी, उसकी एज क्या होगी, वो कैसी लगती होगी, उसकी कमर में दर्द होता होगा तो कैसे होता होगा गोरैया, यू नो. हाँ, और निमकी जब रात का खाना खाती होगी तो उसमें क्या खाती होगी, मतलब दाने खाती होगी या हमारी तरह कुछ ऐसे इंडियन फूड लेती होगी या पत्ते खाती होगी, ये क्या खाती होगी. सो it was the entire visualization in front of my eyes was so beautiful. As I'm saying, मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हूँ उस कहानी से. I am so much into it still कि मैं अभी उसी के बारे में सोच रही हूँ. So thank you so much. I mean, I have शब्द नहीं है मेरे पास तुमको थैंक्स बोलने के लिए. It has been a really, really calming experience for me, if I can say the least. I have conducted many events now. Inspirante has been doing a lot of events and on Sunday morning. But ये experience ना मेरे लिए एक बहुत ही peaceful, बहुत ही calming effect से भरा हुआ था, wherein बहुत सारी जो उथल पुथल हमारे अंदर होती है वो शांत हो जाती है कहीं ना कहीं. आई थिंक वो आपको नजर आ रही होगी शायद, पता नहीं, मेरी ओवरऑल पर्सोना में भी, बिकॉज आज की जो बात है वो कुछ और है. आज की बात एक बनी ठनी बात नहीं है, अंदर की बात है. And I have to thank you for that. I'm so glad कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतनी जेन्युइनली, इतने आराम से बातें होती हैं, इतने प्यार से बातें होती हैं. And then you have such wonderful आप साक्षी इस सेशन में मुझे शायद स्पेस दे रही हैं, लेकिन she is such a beautiful, wonderful person, and she's got such beautiful things to say. It's so sweet. It's absolutely amazing. I'm still learning and still struggling to unlearn. That is more important. All of us. बहुत बढ़िया. मन नहीं कर रहा है मेरा मैं ये सेशन बंद करूं. तुमसे बातें करते रहने का मेरा हमेशा मन करता रहता है. आई नो तुम भी बहुत बिजी रहती हो और मैं भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों में व्यस्त हो जाती हूँ, लेकिन आई मस्ट से दैट इट वाज अ संडे मॉर्निंग वेल मेड फॉर मी. आई एम श्योर माय ऑडियंस ऑल्सो
our audience also is feeling the same way. I don't know. I will see their reactions after the event, and I will let you know that what is it that my audience has really said about it. But मेरे लिए बहुत ही calming experience था. एक अलग दुनिया में तुम्हारी कहानी मुझे ले गई, और आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि जब बच्चे अपनी कहानी अपनी मासूमियत के साथ सुनाएंगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा. बिल्कुल. हम शायद बह ही जाएं उसमें. हम शायद बह जाएं उसमें. हाँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेदी. थैंक यू. बस सच अ प्लेजर. मैं बारी बारी तुमको क्या बोलूं, बट thank you so much for making our day. You have a very good day, and thank you audience for watching us today. We will